topic, that is the vaccination and the type of vaccine. Today we will discuss the different type of vaccines. Okay, so already we have discussed about the vaccine. Okay, all of you just listen carefully. First of all, what is a vaccine? A vaccine is a biological yes, are you all listening? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Now, a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity. You know कि we are having the two type of immunity, the passive immunity and the active immunity. Okay, vaccine जो है, already we have discussed about the different type of immunity. So vaccine, it provide the active acquired immunity and one more thing, acquired immunity. Okay, हम discuss, we have already discussed कि two type की immunities है, innate immunity and the acquired immunity. So vaccine is a biological preparation that provide the active acquired immunity to a particular infectious disease. Okay, and basically what is a vaccine? उसका vaccine typically contains an agent that resemble a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes. So usually you can say कि vaccine क्या है? Vaccine is basically the disease causing microorganism, पूरा live organism नहीं है, but it is the weakened or killed form of the microbe. जो microbe disease cause कर रहा है, it is that microbe also. Okay, so it is that microbe, but it is in its weakened or killed form, या फिर we also contain its toxin. It can be a weakened form, it can be in its killed form, or it can be its toxin और उसके proteins. So any type of molecule जो है एक disease causing microorganism का, any type of molecule we can use to make the vaccine. Okay, so it is vaccine is basically the microorganism, but it is not a live microorganism. It is the weakened or killed form of the microbes or its toxin या उसके surface protein, उसकी कोई भी चीज लेके we can make the vaccine. Okay, so this is the definition of vaccine. Next, what is vaccination and immunization? So the process to give vaccine is called vaccination. Only the introduction of vaccine into the body, that is called as the vaccination, while response of body's system or immune system produced again vaccine is called the immunization. Okay, what is immunization? उसने कहा vaccination only refers to the administration of a vaccine. सिर्फ vaccine को अंदर डालना, that is a vaccination. And what is the immunization? Process by which the body produce antibodies. You all know ki immune, what is the immune response? That our body produce the antibodies against our body produce antibodies against any type of foreign particle, any type of foreign particle. Okay, so when we done the vaccination, जब vaccination हो जाती है, after vaccination the बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी है वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, बिकॉज एनी टाइप ऑफ एजेंट जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, एनी टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल व्हेन एंटर्स द बॉडी, डेफिनेटली आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ओके, सो उसने क्या है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. ठीक है, so this is the difference between the vaccination and immunization. Sometimes इनका मीनिंग सेम भी होता है, but it is different. Okay, vaccination is only the introduction of a injection into a body, but when body react against it, then when body produce antibody against it, जब body अपना response show करेगी, that is the immunization. Okay, now who is the father of vaccination? That is the Edward Jenner. First of all, the vaccine जो है, that is made by the Edward Jenner. And who is the father of vaccine? That is the Louis Pasteur. Okay, so two scientists are there. Now vaccine क्या है? Vaccine already we have discussed, attenuated or heat kill disease causing microorganism है. Basically क्या है? It is nothing. Okay, it is only the microorganism, but it is in its weakened or killed form or attenuated form or inactive form. Okay, so this is the introduction of vaccine and vaccination. Now again, this is again a definition उसने क्या है, biological preparation that improves immunity to a particular disease. Biological preparation है that basically improves our immunity. How it improve immunity? Definitely it form the antibodies in our body. So हमारी body के अंदर antibodies होंगी किसी भी disease के against, so definitely our immunity will increase or improve. Okay, so it contain an agent that resemble a disease causing microorganism. Okay, तो वैक्सीन जिससे बनती है, that चीज, वो चीज क्या है? That is a microorganism only, but उसकी weakened और killed form है.
नाउ दिस इज एग्जांपल, दिस इज द हिस्ट्री बेसिकली कि वैक्सीन कहाँ से डेवलप हुई थी. उसने कहा इन द ईयर 1796 जेनर टुक पस फ्रॉम द हैंड ऑफ ए मिल्क मेड विथ cowpox, scratch it into the arm of an old 8-year-old boy. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि 1796 में एडवर्ड जेनर ने पस जो होती है ना, पस फ्रॉम द हैंड ऑफ ए मिल्क मेड, जो मिल्क मेड था उसके हैंड से पस ली. उस पस में क्या था, काउपॉक्स. ठीक है. स्क्रैच इट इनटू द आर्म ऑफ एन 8-year-old बॉय. उसको किसके अंदर डाल दिया, पुट दैट pus into the arm of a 8-year-old boy. The name of the boy is the James. Okay. 6 weeks later, inoculated the boy with smallpox. Afterwards, observing that he did not catch smallpox. अब देखो 6 weeks के बाद what he did, he did he put inoculated the boy with smallpox. उस boy के अंदर क्या डाला, smallpox डाला जेम्स के अंदर. ओके. बट what he observed that he did not catch smallpox, उसको smallpox नहीं हुआ. Jenner extended his studies and in 1798 reported that his vaccine was safe in children and adult. Okay, so is this clear? उसने कहा 1796 में जेनर ने सिंपली पस ली किससे, फ्रॉम द मिल्क मेड, फ्रॉम द हैंड ऑफ ए मिल्क मेड. उस पस में क्या था, काउपॉक्स. अब उसने उस पस को किसके अंदर डाल दिया, स्क्रैच इनटू द आर्म ऑफ एन 8-year-old बॉय, 8-year-old बॉय के आर्म में डाल दिया. then after 6 year, okay, 6 weeks later, 6 weeks के बाद inoculated the boy with smallpox. उसी boy के अंदर फिर क्या डाला, smallpox. लेकिन देखा कि उसको disease नहीं हुई. okay, so why, what is the reason कि उसको disease नहीं हुई. इसने afterward observe he did not catch smallpox. क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने already जो pus डाली थी, pus contain the weakened form of microorganism. तो पस से उसके अंदर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले ही आ गए थे, पस से एंटीबॉडीज पहले ही फॉर्मेशन हो गई थी. दैट्स व्हाई the boy did not catch the smallpox. Okay, so is this clear? This is basically the history. Are you getting? Yes, everyone. Yes, ma'am. Okay, ये बेसिकली ma'am. हिस्ट्री है. बिल्कुल इट इज वेरी वेरी सिंपल कि उसने पस ली. पस के अंदर क्या था, वीकेंड हो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. पस बेसिकली यू नो ना कि पस क्या होती है, इट इज बेसिकली द इम्यून रिस्पॉन्स. तो उस पस को उसने अंदर बॉय के अंदर डाला. नाउ 6 weeks के बाद जब पस को बॉय के अंदर डाल दिया, इट मीन्स कि द बॉय प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. ठीक है. फिर 6 week के बाद उसने उसके अंदर स्मॉल पॉक्स डाला, लेकिन इट द बॉय डिड नॉट कैच द स्मॉल पॉक्स. सो व्हाट इज द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कैच द स्मॉल पॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर क्या थी, एंटीबॉडीज थी. ओके. नाउ सो he made the vaccine and उसने कहा his vaccine was safe in children and adults. उससे पता चल गया कि अब उसको बॉय को नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी जो वैक्सीन है वो सेफ है चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में. Now, the agent stimulate the body's system to recognize the agent as foreign, destroy it and keep a record of it. अब जो एजेंट हम डालते हैं थ्रू द वैक्सीन, मतलब जो हम वैक्सीन डालते हैं, इट व्हाट द वैक्सीन विल डू, इट स्टिमुलेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा टू रिकॉग्नाइज द एजेंट एज फॉरेन, डिस्ट्रॉय इट एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट. जब उसको जो वैक्सीन जाएगी अंदर, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा एज अ फॉरेन, डिस्ट्रॉय इट और उसका एक रिकॉर्ड भी रखेगा. यू नो कि मेमोरी सेल्स, ओके, दैट इज द मेमोरी बी सेल्स जो होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं, दे आर बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ द पैथोजन दैट एंटर्स द बॉडी, so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that it later encounters, so that कि जो immune system है वो इजिली उसको रिकॉग्नाइज करे और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगी तो ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो प्रिपेयर होंगी बॉडी में, सो इमीडिएटली दे विल रिस्पॉन्ड. Okay, so second time infection, this is all about, this is the second time infection. Second generation of vaccine was introduced in the 1880, was Louis Pasteur who developed vaccine for chicken, cholera and anthrax. Okay, so बाद में जो vaccine पहले एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया, then after that Louis Pasteur ने develop vaccine for chicken, for cholera and the anthrax. And from the late 19th century, vaccines were considered a matter of national prestige and compulsory vaccination laws were passed. अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो है सभी कंट्रीज में जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज है उनके लिए वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो 19th सेंचुरी के बाद जो है वैक्सीनेशन को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया किया गया डिफरेंट कंट्रीज में. ओके, now we are having the different type of vaccine. Okay, so we are having five important type की vaccines है. First one is the live attenuated vaccine, second one is the inactivated vaccine, third one is the subunit vaccine, and fourth one is the toxoid vaccine, and fifth one is the conjugated
vaccine. So we will discuss thoroughly all these type of antigens and vaccines. Okay, so first of all is the live attenuated vaccine. Just look into this picture carefully. So a live attenuated vaccine contain a version of the living microbe that has been weakened in the lab so that it can't cause disease. Okay, लाइव जो एटूनेटेड वैक्सीन होती है इट इज अ लाइव एंड एटूनेटेड मींस कि उसमें वीक किया जाता है उसको. ओके, कंटेन अ वर्जन ऑफ द लिविंग माइक्रोब दैट हैज बीन वीकन, जिसको लैब में वीक किया जाता है. बिकॉज अ लाइव एटूनेटेड वैक्सीन इज द क्लोजेस्ट थिंग टू a natural infection. These vaccine are good teachers of the immune system. Immune system के टीचर मीन्स कि वो उसको हेल्प करते हैं टू फॉर्म द एंटीबॉडीज. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ गुड टीचर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. ओके, सो उसने कहा यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं बट इट शुड बी इन इट्स एट्यूनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं. ओके, सो जो वाइडली यूज्ड वैक्सीन है इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन जो हम यूज करते हैं, वैक्सीन अगेंस्ट मीजल, मम्स एंड चिकन पॉक्स, दे आर द लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स. ओके, देन यू आर हैविंग द इनएक्टिव वैक्सीन. इनएक्टिव मीन इसको बोलते हैं इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन. ओके, इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन आर उसमें यूज माइक्रोब्स दैट हैव बीन किल्ड. उसमें हम माइक्रोब्स को टोटली किल कर देते हैं. इनएक्टिव जो वैक्सीन होती है उसमें यूज्ड इन ह्यूमंस में हम इसको यूज करते हैं स्पेशली कौन सी, रेबीज के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, पोलियो के लिए. Now scientists produce inactive vaccine by killing the disease causing microorganism with chemical heat or radiation. उसको chemical से, heat और radiation से हम उसको मार देते हैं. Such vaccines are more stable and safer than the live vaccine. क्योंकि live vaccine में there is a rare chance कि वो disease cause कर सकते हैं, but inactivated vaccine में there is no chance of disease, no chance that they can cause disease. Dead microbes can mute back to their disease causing state. उसने कहा कि बड़ा रेयर चांस होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन म्यूट बैक, उसने कांट म्यूट बैक, ठीक है, वो हो ही नहीं सकते वापस जो है डिजीज कॉजिंग स्टेट में नहीं आ सकते. बट लाइव में देयर इज अ रेयर चांस कि वो वापस डिजीज कॉज कर सकते हैं. ओके, एग्जांपल इज द वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज. ओके, जिसमें हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाते हैं. देन यू आर हैविंग द सब यूनिट वैक्सीन. ओके, उसने कहा सब यूनिट वैक्सीन आर द, उसने इंस्टेड ऑफ द एंटायर माइक्रोब, सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. ओके, सिर्फ उसका एक एंटीजन होता है. यू नो कि जब हमारा कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द जीन की हेल्प से प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. प्रोटीन इज बेसिकली द एंटीजन. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. whenever any bacteria or virus enters our body, it produces the toxics mean the proteins, and proteins are produced by genes means proteins are produced by genes. Okay, तो उसने कहा कि अगर हम उसी का कोई भी एंटीजन यूज कर ले जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करके अपने एंटीजेंस यूज करता है. ओके, सो हम किसी एंटीजन को यूज करके वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एंटीजन ऑल्सो प्रोड्यूस, जब एंटीजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज. ओके, so in some cases these vaccines use epitopes, the very specific part of the antigen that antibodies or T cell recognize and bind to. किसी भी सेल का पार्ट हो सकता है. इट कैन बी द पार्ट ऑफ द सेल वॉल. बैक्टीरिया में कैप्सूल है, कैप्सूल का कोई मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, सेल वॉल का कोई मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं. दैट इज द सब यूनिट वैक्सीन कि हम उस माइक्रोब का एनी पार्टिकल वी कैन यूज टू मेक द इम्यून रिस्पॉन्स. Okay, so these vaccine use epitope. Epitope means specific part of the body, a specific part of the microbe. Okay, so this is the subunit vaccine. Okay, the subunit vaccine contain only the essential antigen, not all the other molecule that make up the microbe. उसमें कुछ ही antigens होते हैं. Example is the plague immunization है. Then next is the toxoid vaccine. For उसने कहा for bacteria that secrete toxin or harmful chemical, a toxoid vaccine might be the answer. उसने कहा toxoid vaccine में क्या होता है, उसने कहा which are inactivated toxin, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. अब एंटीजन अंदर एंटर करेगा तो एंटीजन से वो टॉक्सिन ही प्रोड्यूस करते हैं. उसने कहा टॉक्सिकॉइड वैक्सीन में हम बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करके जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वी कैन यूज दैट टॉक्सिन ऑल्सो. हम डायरेक्टली उस टॉक्सिन को यूज करेंगे बट दैट टॉक्सिन आर inactivated form. Okay, so उसने क्या आर वैक्सीन डायरेक्टेड एट द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैथोजन, क्योंकि टॉक्सिन भी किसने प्रोड्यूस किया, पैथोजन ने. दीज वैक्सीन्स आर यूज्ड व्हेन ए बैक्टीरियल टॉक्सिन इज द मेन कॉज ऑफ इलनेस.
नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दे कैन एक्टिवेट टॉक्सिन बाय ट्रीटिंग देम विद फॉर्मलिन. उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं फॉर्मलिन से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से हम टॉक्सिन को क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे. बट व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी इट डेफिनेटली प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स से क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होंगी. ओके, देन यू आर हैविंग द कंजुगेट वैक्सीन. कंजुगेट उसने कहा इफ ए बैक्टीरियम, yes, are you all listening? Yes, Sakshi, Guntas, Yes. are you getting Yes, na? ma'am. Yes, Okay, okay. Next you are having the conjugate vaccine. उसने कहा if a bacterium possesses an outer covering coating of sugar molecule called polysaccharide, as many harmful bacteria do, researchers may try make a conjugate vaccine for it. Conjugate vaccine का क्या मीनिंग होता है कि कुछ हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो एंटीजेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसके हम क्या करते हैं, उन एंटीजेंस के साथ हम कुछ पॉलीसेक्राइड्स, कुछ शुगर्स यूज करते हैं. दैट इज अ कंजुगेट. बैक्टीरियम पोजेस एन आउटर कोटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीसेक्राइड. तो उसमें वैसे भी पॉलीसेक्राइड होते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंजुगेट वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड आर कंबाइंड विद प्रोटीन. जो उसके एंटीजेंस होते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैक्टीरिया का जो भी बैक्टीरिया जो पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है, डेफिनेटली एंटीजन से कॉज कर रहा है. वी कैन कंबाइन द पॉलीसेक्राइड विद प्रोटीन. सो पॉलीसेक्राइड को प्रोटीन से कंबाइन करेंगे, उससे क्या होगा कि उसका मेन रीजन ये होता है कि कुछ एंटीजन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो बॉडी में मतलब इजिली विजिबल ही नहीं होते. सपोज वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमारे जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उसको बाइंड ही नहीं कर पाते, इतने छोटे होते हैं कि बाइंड ही नहीं कर पाते कुछ एंटीजन्स. ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन कंबाइन द एंटीजन विद स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. हम उसकी पूरी चेन बना देंगे एंटीजन विद उसके साथ 2-3 हम जो पॉलीसेक्राइड ज्वाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होंगे वो इजीली उसको, एंटीबॉडीज पे जो रिसेप्टर्स होंगे या सेल पे जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको इजीली बाइंड कर लेंगे. ओके, सो पॉलीसेक्राइड कोटिंग discuss the bacterium antigen so that the immature immune response of infant and young children cannot recognize or respond to them. ठीक है, जब वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, उसका इजिली जो है उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. सो कंजुगेट वैक्सीन इज वेरी सिंपल, जिसमें हम एंटीजन, ओके, द पॉलीसेक्राइड आर कंबाइंड विद प्रोटीन. जो एंटीजन हैं, प्रोटीन मींस एंटीजन, जो एंटीजन को हम कंबाइन करते हैं विद द पॉलीसेक्राइड्स विद द शुगर. ओके, सो दिस इज द कंजुगेट वैक्सीन. वन मोर टाइप है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. ओके, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है कि हम जो है एक उसका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन सिमिलर टू डीएनए वैक्सीन. इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो भी वायरल बैक्टीरिया उसकी जीन इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होगा, पैथोजन होगा, जो पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है, तो उसको जो डिजीज कॉजिंग जो डिजीज प्रोड्यूस करती है जीन, उस जीन को हम यूज करेंगे. सो दैट इज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. ओके, सो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन आपको हम ये पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में विल डिस्कस थॉरोली अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि डीएनए में, उस बैक्टीरिया के डीएनए में या किसी भी होस्ट सेल के डीएनए में हम वो वाली जीन, जो बैक्टीरिया जिस जीन से टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है, उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे. ओके, सो इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक. ओके, सो ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. एन एग्जांपल इज डीपीटी. उसने कहा डायपथीरिया, पेर्टुसिस, टेटनस. इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, मतलब 3 डिजीजेस के लिए. यू कैन सी डीपीटी. डीपीटी जो है डायपथीरिया, पेर्टुसिस और टेटनस, 3, मतलब ये जो वैक्सीन होती है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजीजेस. सो तीनों डिजीज के लिए हम एक साथ वैक्सीनेशन दे देते हैं. सो दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर vaccines. Okay, so this is clear? Yes. Yes, ma'am. So these are the different type of vaccines. Yes. Okay, so now you all have to study कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है. Read the different type. If there is a problem then we will discuss again. इसको read करना, अगर कोई डाउट होगा then we will discuss it again. Okay, if there is any doubt. Now your next topic is the cancer. उसने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैंसर. ओके, आई थिंक यू ऑल नो कि कैंसर क्या होता है. कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. उसने कहा है कैंसर इज एन एबनॉर्मल, ओके, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल. सो उसने कहा है
that invade and destroy the surrounding tissues. You all know कि कैंसर में क्या है कि अब abnormal और uncontrolled division of cells होता है, but we will discuss कि क्यों होता है, that what are the reason. उसने कहा generally cancer is defined as a uncontrolled proliferation, multiplication, uncontrolled proliferation of cell without any differentiation. उसमें basically differentiation नहीं होती है. Usually क्या होता है, cells divide करते हैं and after some time they will specialize, they will differentiate. cells divide करेंगे, जैसे प्लांट में आप पढ़ते हो कि आपके जो पेरेन्काइमटस सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं, ओके उसके बाद डिफरेंशिएट होते हैं. बट इन दिस केस अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन तो होती है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन. सेल डिवाइड करे जाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन नहीं होती सेल्स की. ओके नाउ उसने कहा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. उसने कहा कैंसर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स. कैंसर सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होते हैं. दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी. वो बॉडी के एक ही पार्ट में नहीं रहते हैं. they penetrate and infiltrate into the adjoining tissues. penetrate करके adjoining tissues में चल जाते हैं and dislocate their function. उनके functions को dislocate करते हैं. some of the cancer cells जो हैं get detached from the main site of origin. जहाँ उनका origin होता है वहां से detach होके and travel by blood and lymph to sites. blood से और lymph से travel करके दूसरी sites में पहुंच जाते हैं from the original tumor. जहाँ tumor होता है वहां से जो ओरिजिनल ट्यूमर्स होगा सेल्स विल डिटैच फ्रॉम देयर. वहां से डिटैच होके दे विल मूव विद द हेल्प ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ एंड रीच टू डिफरेंट साइट्स. और वहां जाके कॉलोनीज बना देते हैं. ठीक है, फॉर्म फ्रेश कॉलोनीज देयर. उसको आप मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हो. ओके सो विल डिस्कस मेटास्टेसिस. बट फर्स्टली उसने क्या, व्हाट इज कैंसर? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट विद अदर सेल एंड इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसने क्या है, normal cells have a limited lifespan. Okay, are you all listening now? Okay, just listen it carefully. उसने कहा Yes, ma'am. normal cell have a limited lifespan. They are usually replaced by new cell through cell division and cell differentiation. जो normal cells होते हैं उनका limited lifespan होता है, वो replace हो जाते हैं new cell से cell division through the cell division and cell differentiation. क्योंकि cell ने divide किया, suppose एक cell से 10 cell बने, उसमें से वो differentiate हो जाएंगे. 2 जो है अपना काम करेंगे, 2 अलग काम, मतलब differentiate हो जाएंगे. But in case of cancer cell, they are not showing the differentiation. देयर प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड इन सच अ मैनर. जो नॉर्मल सेल होते हैं उनकी प्रोडक्शन रेगुलेट होती है कि नंबर ऑफ गिवन सेल टाइप रिमेन कांस्टेंट, कि जितने सेल होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे नॉर्मल सेल्स में. नाउ नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की. व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? उसने कहा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है जिसमें जो नॉर्मल सेल हैं जब वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगे, उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ. ठीक है, उनकी कंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो बंद हो जाएगी. कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो जाती है. बट कैंसर सेल, उसने कहा है दीज सेल्स प्रोलिफरेट इन एन अनरेगुलेट मैनर एंड फॉर्म क्लोन्स ऑफ सेल व्हिच कैन एक्सपैंड इरेगुलरली. ओके सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है. जब वो दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट विद अदर सेल एंड इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल. एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनकी अनकंट्रोल डिवीजन को बंद कर देंगे. जैसे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा, कैंसर सेल लूज दिस प्रॉपर्टी एंड कंटिन्यू टू डिवाइड ट्यूमर फॉर्म्ड. और कंटिन्यूसली डिवाइड होकर ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है और द मासेस ऑफ सेल्स. ओके नाउ दिस इज द ट्यूमर यू कैन सी इन द पिक्चर. कैंसर सेल डिवाइड, ये देखो ये कैंसर सेल डिवाइड कर रहे हैं. दीज आर द नॉर्मल सेल्स. जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट नहीं, मतलब देखो आपस में कांटेक्ट में है तो दूसरे सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं हो रही है. ठीक है, देखो ये लिमिटेड जो है उनकी ग्रोथ है. बट इन केस ऑफ ट्यूमर सेल यू कैन सी कि अनकंट्रोल्ड विदाउट एनी रीजन जो है ये डिवाइड करे जा रहे हैं. ए ट्यूमर इज फॉर्मिंग, कैंसर सेल डिवाइडिंग, दैट्स व्हाई ए ट्यूमर इज फॉर्मिंग. नाउ अब देखो नॉर्मल सेल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कैंसर ब्रेक्स थ्रू द मेम्ब्रेन. अब कैंसर जो है ब्रेक करेगा. ये देखो जब बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है, ट्यूमर रैपिडली ग्रोइंग इन्वेडिंग सेल्स. जब ट्यूमर जो है रैपिडली ग्रो करता जाता है क्योंकि उनकी जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है. सो कैंसर सेल ब्रेक थ्रू द मेम्ब्रेन. कैंसर सेल डिटैच एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. यहाँ से भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो दे कैन स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम देयर. ओके यहाँ से डिटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे कैन ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड द लिम्फ एंड रीच टू अदर साइट्स. ओके तो बाकी साइट्स में जाना शुरू कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ मेटास्टेसिस. ओके
So when a cancer cell detach from their original site and reach to other sites through the blood and the lymph, and that process is called as the metastasis. Okay, now you can see in the picture, this is a normal cell. ये देखो, ये normal cell है, normal cell. नॉर्मल सेल बिकम्स द एबनॉर्मल. अब एबनॉर्मल जो नॉर्मल सेल है, बिगनिंग ऑफ कैंसर में क्या है कि नॉर्मल सेल जो है दे स्टार्ट टू बिकम द एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हैं. एबनॉर्मल सेल जो है मल्टीप्लाई करते हैं. एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लाई एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे. तो देन दे फॉर्म द मैलिग्नेंट और द इन्वेसिव कैंसर. मैलिग्नेंट का मतलब है कि जो मूव करता है, देखो वो फिर मूव करेगा और बाकी पार्ट्स में जाना शुरू कर देगा. दैट इज द मैलिग्नेंट और इन्वेसिव कैंसर. ओके, नाउ नॉर्मल सेल्स जो हैं दे बिकम एबनॉर्मल. उसका रीजन है कि बड़े सारे हमारे पास रीजन होते हैं, जो मतलब कि जो एजेंट्स होते हैं, रेज होती हैं, जो म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल बन जाते हैं. दे लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड दे डिवाइड अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं. सो नॉर्मली कैंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि नॉर्मल सेल्स का जो डीएनए है, जीन म्यूटेशन हो जाएगी. बड़े सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कैंसर, जो नॉर्मल सेल है वो एबनॉर्मल बनेंगे. एबनॉर्मल मीन दे लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ओके, एंड फाइनली दे फॉर्म द मैलिग्नेंट कैंसर. मैलिग्नेंट कैंसर बेसिकली द मेन कैंसर होता है आपका जो. ओके, नाउ आपके पास हमारे डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं. कार्किनोमा, सार्कोमा, लिम्फोजा कार्किनोमा होता है जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का, लंग, पेनक्रियाज, दीज आर द कार्किनोमा. देन सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यूज में, बोन्स में, कार्टिलेजेस में जो कैंसर होता है. देन लिम्फोमा और लिकोमिया जो लिम्फ नोड्स में या ब्लड में जो कैंसर होता है उसको आप लिकोमिया बोलते हो. ओके, सो दीज आर द कैंसर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. Okay, now we are having the two type of cancer, the benign and the malignant. Okay, benign cancer क्या होता है, confined to location, do not spread, cause little damage. benign tumor जो है मतलब आपका जो cancer है, जो tumor, it is of two type. First one is a benign, that is confined to a particular location, do not spread to other locations and cause little damage. क्योंकि एक ही जगह पे होता है तो उसको आप easily remove भी कर सकते हो और वो little damage cause करता है. But your next is the malignant, mass of proliferating cell, न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. जो ट्यूमर सेल है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर देते हैं. मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल मतलब जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, उनका जो मास होता है ग्रो रैपिडली, इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं. एंड दे स्टार्व नियर बाय सेल ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स. जो साथ वाले सेल्स होते हैं उनको वाइटल न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिलते ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कैंसर. So metastasis already you know कि cells of tumor start a new tumor wherever they get lodged. जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे भी ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं. So that is the metastasis when they move from one place to another. Okay. Yes. Just wait. Okay. Okay. Next, is this picture visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. सिम्टम्स एंड मेटास्टेसिस. अब इसमें क्या है कि जो कैंसर मेटास्टेसिस जो है, मेटास्टेसिस में तो मूव करते हैं वो वन प्लेस टू अनदर. फर्स्ट वन इज द ब्रेन. द रिस्पेटरी कहाँ कहाँ पे होते हैं, बेसिकली ब्रेन में है, रिस्पेटरी सरफेसेस में होते हैं, लिम्फ नोड्स में होते हैं, लिवर में होते हैं, स्केलेटल में होते हैं. ओके, देन